class. Today I will explain your second chapter, constitutional design. Okay, this is your second chapter in civics. So let's continue the chapter. Today's your topic, equality of sexes in South Africa, need of constitution and making of the Indian constitution. This is your three topic जो हम डिस्कस करेंगे आज. Okay. So first we equality of sexes in South Africa. Okay. Equality of sexes. Sexes means होता है जो नस्ल होती है, भेद होती है रंग को लेकर, नस्ल को लेकर, तो वो होता है आपका sexes. After the emergence of the democratic South Africa, black leaders appealed to follow black to forgive the whites for the atrocities. देखिए जब साउथ अफ्रीका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई तो उसके बाद जो लीडर थे, ब्लैक कम्युनिटी के जो लीडर थे साउथ अफ्रीका के, तो उन्होंने अपील किया लोगों से कि वो व्हाइट जो पीपल हैं उनको फॉरगिव करें, माफ करें, जो उन्होंने एट्रोसिटीज की हैं, यानी कि जो उन्होंने जुल्म अत्याचार किए थे ब्लैक के साथ. They want to build up a new South Africa based on equality of all races. देखिए वो एक नई साउथ अफ्रीका बनाना चाहते थे जिसमें सभी नस्ल के लोग क्या हो, इन्वॉल्व हो. ठीक है. The party that ruled through oppression and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution. वो एक ऐसी पार्टी बनाना चाहते थे जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट और जितनी भी नेक्सेस इन्वॉल्व, मतलब साउथ अफ्रीका में लिव कर रही थी, वो सारी उसमें इन्वॉल्व हो. They included everybody in the society. Whatever they might have done or represented it in the past, this spirit is summed up in the preamble to the South Africa Constitution. This South Africa Constitution inspired Democrats all over the world. Now South Africa is seen as a model of democracy. इंडिपेंडेंट हो गया, फॉरगिव किया ब्लैक लोगों ने व्हाइट लोगों को. ठीक है, उनके जो तमाम तरीके जो अत्याचार हो रहे थे उनको फॉरगिव कर दिया. और अब जो साउथ अफ्रीका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो एक मॉडल के रूप में बनकर आया है, डेमोक्रेसी के मॉडल के रूप में. ओके. सेकंड टॉपिक, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू सर्व सफीगार्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल, whatever whether they belong to major community in minor community. Some basic rules for all. The whites agreed to the principle of majority rule and one person one vote. जब साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनके हुआ तो उसमें व्हाइट क्या थे, व्हाइट जो पीपल कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने जो प्रिंसिपल था मेजोरिटी का, वन पर्सन वन वोट, उसको एग्री किया. They also agreed to accept some basic rights for the poor and the worker. The blacks agreed the majority rules would not be absolute. So they wrote down some rules which everyone had to obey and all future governments would have to follow. These rules made up the constitution of the new country. देखिए कई ऐसे रूल्स है जिसपे कि व्हाइट लोगों ने एग्री किया, कई ऐसे रूल्स है जिसमें ब्लैक लोगों ने एग्री किया. तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया साउथ अफ्रीका जो कि सभी लोगों के लिए काफी अच्छा था. So it can be concluded that the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living in a country. We need constitution to fulfill following our tasks. It generates a degree of trust of coordination among people that is necessary for the different kinds of people living together. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को फुलफिल करने के लिए कौन कौन से टास्क उन्होंने फॉलो किए थे. तो फर्स्ट था उन्होंने जनरेट अ डिग्री of trust and coordination among people that is necessary for the different kind of people living together. It specify how the government will be constitution and who will have the power to make this decision. It lays down limit to the power of the government and also specify the rights of the citizen. And last one, it is also express the appreciation of the people about क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. ये सारे जो रूल्स थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें कि क्या है, सभी लोग क्या हो उससे सेटिस्फाइड हो, तो ये रूल सारे उसमें
इन्वॉल्व किए गए, ठीक है। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप सभी ये बात तो जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे काफी टाइम तक उन्होंने भारत पर रूल किया, ठीक है। तो ये करीब 1950 के बाद, जो 1950 है उसके बाद की 1947, उसके बाद भारत जो था, इंडिया जो था, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री में कन्वर्ट हुआ। द ब्रिटिश लेफ्ट द डिसीजन टू द रूलर्स ऑफ प्रिंसिपली स्टेट टू मार्च विद इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। देखिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत यानी इंडिया को छोड़ा किस शर्त पर था कि उन्होंने डिवाइडेशन किया, यानी कि इंडिया जो था वो पाकिस्तान में डिवाइड नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को अलग डिवाइड कर दिया, इंडिया को अलग कर दिया। और साथ में जो प्रिंसेसली स्टेट थे, ठीक है, जो मतलब कहें तो राजा के राज्य की वो होती थी, सीमाएं होती थी, उनको उनके उन जो डिसीजन था उस पर छोड़ दिया। चाहे तो वो क्या है इंडिया में इंक्लूड हो सकते हो, चाहे तो वो एक खुद का क्या है एक स्टेट बनाकर रह सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वेयर एनेक्सियस अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द नेशन। अब जो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, संविधान बनाने के निर्माता थे, उन्हें काफी ज्यादा एनेक्सियस यानी कि चिंता होने लगी कि वो प्रेजेंट और पास्ट जो इंडिया का फ्यूचर है उसको कैसे बचाएंगे, उसको कैसे और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे। द पथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्सिक्यूज ऑफ creating the Indian Constitution had involved during the freedom struggle. There were different views regarding what path India should take after independence, but some basic ideas were accepted by everyone. These basic ideas were pivotal in the formation of Indian Constitution. इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई 1947 में। कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे, अब उन लोगों को एक मतलब कहें तो कुछ बेसिक रूल्स चाहिए थे कि जिसको क्या है सभी फॉलो कर सके, जो इंडिया के ऑल कम्युनिटी के जो पीपल है उससे एग्रीड हो, ठीक है। तो काफी सारा कन्वर्सेशन हुआ, डिस्कशन हुआ, और कुछ जो रूल्स थे, तो सब इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो निकल कर आए। डिस्कशन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। इन 1928 मोतीलाल नेहरू and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. देखिए 1928 को मोतीलाल नेहरू एंड उनकी जो कम्युनिटी थी, एक अदर कांग्रेस लीडर, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए ड्राफ्ट तैयार किया। At the Karachi session of the Indian National Congress in 1931, the leader decided how the Indian Constitution should look like. Universal adult franchise, right to freedom and equality, right of minorities, etc. were some important topic discussed. के तो जो कराची का सेशन था 1931 में, उसमें जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक रूल है वो क्या होना चाहिए। फर्स्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। कोई भी पीपल, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, उसको वोटिंग का राइट होना चाहिए, लेकिन वो 18+ अबव होना चाहिए, ठीक है। And the right to freedom and equality, right of minorities. It is some basic important topic discussed. Some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly made the declaratory deliberate on the Constitution. Okay, so ये इंडिया जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से मेक किया गया, उसमें कौन कौन से बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे उस पर डिस्कशन किया गया उनको, और लार्जली स्केल पे उस पर डिस्कस किया गया, उसको कैसे देखा गया, ये सारा आपका इस टॉपिक। ओके, so this is your 3 topic and 4 topic also complete. Everyone read the topic, and I will send some notes also in this chapter.